ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان۔ ارے بھائی ایک منٹ بجائے اس کے کیا میرا نام لے کر، ابھی ہمارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آج بہت نہیں ایکسکیوز می، آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی اپسیٹ سنس مارننگ۔ صبح اس وقت سے ہی نہیں، وہ ایک اور وجہ سے میں وہ بہرحال وجہ یہ ہے بھائی، میرے صبح اٹھتے ہی جب وہ میں نے آنکھ کھولی اور اخبار پڑھے، جو کام ہے آپ کا۔ نہیں اخبار پڑھنے کے بعد، اخبار تو پڑھ چکے، تو پھر وہ بندہ سوشل میڈیا ٹی وی شی وی کھولتا ہے، دہائی مچ رہی تھی، ہائے اللہ سٹاک ایکسچینج ریکارڈ بندی، لٹے گئے مارے گئے۔ اچھا آج سے ایک ہفتہ پہلے تک خبریں آ رہی تھی کہ او تاریخی اضافہ۔ میرے تمہارے اور یہ جو ہمارے سارے بھائی سمیت ہمارے ہاں کیا لڈیاں پڑ رہی تھی، ہم ادو بھی پیڑے سا ہوں بھی پیڑے جڑے لاہور پیڑے اور تھاں پیڑے، ٹھیک ہے نا ماں۔ بہرحال وہ جی کیوں ہو رہا ہے یہ صاحب، سرمایہ کار ڈر گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ۔ یار الیکشن کروانے سے بس یہ اسٹاک ایکسچینج کہاں سے شروع ہوا؟ نہیں اسٹاک ایکسچینج کہاں سے شروع ہوا؟ برطانیہ میں کیا سرمایہ داری ہے یا مارشل لا ہے؟ نہیں آپ کیا نہیں وال اسٹریٹ جرنل کہاں ہے، یعنی وال اسٹریٹ کہاں ہے؟ برطانیہ، امریکہ، وال اسٹریٹ، اچھا ہاں ٹھیک ہے یار نیو یارک ہاں میں ٹھیک کیا ہے ہو ٹھیک گیا ہے، یار، وال اسٹریٹ فائنینشیل جرنل، کیپٹل ہاں ہے، ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنے کی وہ ٹھیک ہے، اور میری تسی پڑھائی پہلے خدا کا واسطہ ٹھیک ہے ہاں، تو وہاں الیکشن نہیں ہوتے، وہاں اسٹاک ایکسچینج جب تباہ ہوتا ہے تو کیا وہ اس دن الیکشن کی تاریخ دی ہوتی ہے؟ نہیں آپ شاید کنفیوز کر گئے چیزوں کو۔ وہ ہمارے آج سینئر صحافی دوست بھی ہیں کامران خان صاحب، انہوں نے اس پہ ایک واضح بریف اردو میں لکھا، اچھا پڑھ لو چلو۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ جو 8 فروری کو پتھر پہ لکیر ثابت کر کے سپریم کورٹ کے اقدامات سامنے آئے تھے، اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ گھبرا گیا ہے کہ چور لٹیرے دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں یہ میسج نہیں دیا انہوں نے۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہا اگر الیکشن کے اعلان سے گراوٹ ضرور ہوئی ہے کچھ پوائنٹس میں، کیونکہ امپیکٹ آیا نا کہ یار الیکشن آنے والا ہے۔ بھائی میرے گزارش یہ ہے، انڈیا میں مڈ مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، وہاں کا اسٹاک ایکسچینج کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ جنوری بنگلہ دیش جو تم سے جدا ہوا تھا، اس میں اگلے مہینے الیکشن ہے۔ ان کی بزنس، ان کی اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کی خاص ایک سرشت ہے، اپنی ترکیب میں خاص ہے۔ انڈیا میں نگران حکومت نہیں ہوتی۔ او بھائی میرے، کسی زمانے میں بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ بھائی میرے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خرم حسین صاحب ہمارے جو بہت، میں نے ہمیشہ اقتصادیات کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ڈانس، یار بات سنو میری، میں کسی کامران خان صاحب میرے ہم اثر ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں ایک دو حوالوں سے، لیکن میں ان کے بارے ان کی بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بندہ جو علم معیشت کو استاد کے طور پر بھی جانتا ہے اور اس کے بارے میں لکھتے بھی ہیں، جو پڑھاتے بھی ہیں، جنہوں نے پڑھا بھی ہے اور عام آدمی کو سمجھاتے بھی ہیں، یہ انہوں نے، نام ہے ان کا خرم حسین، دسمبر 14 کو انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ 14 دسمبر کو انہوں نے کہا اے مشتری ہوشیار باش، مسلمانوں ہوشیار رہنا، آج کل خبریں آ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج بہت بلند ہو رہا ہے، تو اس جھانسے میں نہ آنا، ساڈے تے نہ رہنا پلیز۔ یہ بس انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ نہیں لکھا یار، ان کا انٹرو ہے، ان کیس یو آر تھنکنگ آف جمپنگ انٹو، یار نہ کرو نا، اب تم مجھے انگریزی میں سکھاؤ گے۔ دو باتیں کریں، کامران صاحب جو اینگل دیا وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے، خرم صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں۔ کہ جناب جولائی میں کیا ہو گیا تھا؟ جولائی میں ہو گیا تھا ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ فرسٹ رینک آ گئی تھی، ہمارا وہ معاہدہ شہباز صاحب نے کیا تھا، یار سن لو نا پہلے بات، ہو گئی۔ اس کے بعد جولائی سے ستمبر تک رونق لگ گئی ہمارے بڑے کاروباری اداروں کی، اس کی وجہ سے ہمارے جتنے سیٹ ہیں، سیٹ انہوں نے کتنے پیسے کمائے جولائی سے ستمبر تک ٹیکس وغیرہ ادا کر کے؟ 418 ارب ڈالر جی، سوری روپے، 418 پاکستانی ارب روپے، یہ بھی بہت اماؤنٹ ہے، بہت اماؤنٹ ہے۔ اس میں سے 60%، 1 ارب بنتا ہے ڈالر، 60%،
60% 2 मेजर शोबों ने कमाया। एक बैंकिंग, हाँ वो जिस पे क्योंकि बैंकों का जिसका हमने विंडफॉल टैक्स लग गया हमने ना कहा उस पे। जिन पे लगा था विंडफॉल टैक्स, ठीक है लग जी। गया ना उस पे। और दूसरा एनर्जी, चूंकि वो तेल की कीमतें खजा, हेलो, इससे पहले अच्छा, इन्हीं 2 सेक्टर्स ने मार्केट में स्टॉक्स खरीदने शुरू करिए। यूजुअल जो सस्पेक्ट्स जो आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करते हैं, जिनके नाम दुनिया जानती है, हम लेके क्या करेंगे। नहीं, ये आपके फैक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बट आप इन फैक्टर्स को डिसएंगेज नहीं कर सकते इलेक्शन से भी। जो स्टॉक तो एक्सचेंज मैं पे फिर इम्पैक्ट है, दोबारा कह रहा हूं, क्या दुनिया में कहीं भी इलेक्शन ठहरिए। की तारीख के साथ लंदन का स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बैठा कि फला दिन तारीख आप हो रही है? रुक जाना, अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाए ना, अब एक सवाल तो ले लेना साथ में। तो क्या नुसरत जावेद इस बात पे कन्विंस्ड है कि भाई अब स्टॉक मार्केट है बेहतर भी हो सकती है, मैं तो ये स्टेबल भी हो सकती ओ है? भाई मेरे, आज ही जितने लोग मईशत वाले हैं वो ये कहते हैं जी कि हम तो पहले ही कह रहे थे, जिन्होंने आज के ही मंदे के बारे में ये लिखा हुआ है, लिख रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनाब ये ओवरसोल्ड थी। कुछ लोगों ने बाकायदा चक्कर चला के, ओ क्यों यार, किया बात उन्होंने? सुनना मेरी, क्यों किया उन्होंने? एक फिल्म की शोहरत करके तो टिकट यानी खिड़की पे खिड़की तोड़ हफ्ता करके, उसके बाद अगर तुम्हारे पास 200 सीटें हैं, 100 सीटें बेचो, तुम अपना क्यों किया उन्होंने ऐसा? बाल कमाने के लिए। ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ लफ्ज आता है ना, सट्टा, हाँ। सट्टा जुआ ही होता है ना, तो जुए में यही होता है, आप स्टेक्स लगाते हो और हार सट्टेबाजों ने जीत होती है। इसके इसके साथ सट्टाबाजी हुई है और कहा गया कि जी चूंकि सब कुछ हा हटके बुद्दन, उस वक्त ये खुर्रम हुसैन जैसे लोग फोरबॉर्न कर रहे थे। आप कामरान खान साहब को नहीं डिस्कस करना चाहते ना करें, आई हैव अदर आर्गुमेंट। निगरान वजीर आजम गए कराची, तो बिजनेस कम्युनिटी ने क्या कहा था? आप एक आदमी ने सिंध क्लब में कहा, हाँ, अल्लाह भला करे, बताएं क्या कहा? सिंध कम्युनिटी यानी बिजनेस कम्युनिटी ने एज अ होल नहीं कहा, सिंध क्लब में दोबारा कह रहा हूं बिजनेस कम्युनिटी ने नहीं कहा यार, बिजनेस कम्युनिटी का एक क्लोज डिनर जिसमें 8-10 लोग थे, उनमें से एक ने कहा, उसके नाम का पहला लफ्ज मीम से शुरू होता है। मीम या एम? मीम, एम, दोनों में से एक, साथ में काफ भी लगता है। काफ जो है वो कैंची वाला। फिर पूरा दास दो। नहीं बस नहीं ना, मेरा वादा है नहीं कहना। बहरहाल वो एक अदरवाइज एक मीम हवाले और से काफ कैंची वाला। अच्छा, वैसे आप ट्विटर पे आप बता सकते हैं एक और हवाले से जो है वो एक बड़ी मशहूर शख्सियत के बड़े भाई भी होते हैं, और एक बड़े बिजनेस, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनके छोटे भाई मेरे दोस्त हैं। मैं भरम से मैं हाँ, नहीं लेकिन उनसे आप ट्विटर पे लिख दीजिए क्या, लेकिन आई विल अनाउंस कि किसने नाम वो डाला, सही किया। है। ये एक खास एक क्लास है जो खेलती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुए की तरह, और ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में, और मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो शख्स इस मुल्क में इंतखाबात को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं पूरी दयानंदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब कोई नहीं है ऐसा। वो अब ऐसा कोई नहीं है। अब तो हो रहा है। मैंने असद को कह रखा है हमारे ब्यूरो चीफ आमिर सईद अब्बासी को ढूंढा जाए। वो आ गए, लेकिन मैं इसके बाद अच्छा पूछो, इन्हीं से पूछ लो कि कहां से आज करारदादी आई है। चलो शुक्र है उन्हें वेलकम को, और पूछो। मैं और नहीं अपना सीना चलाना चाहता। भाई बहुत शुक्रिया देने के लिए। मेरी आवाज आपको आ रही है मेरे दोस्त? जी मैं सुन रहा हूँ सर। ये जो हवाला देना चाह रहे हैं नुसरत साहब, वो पाकिस्तान बार का है और सुप्रीम कोर्ट बार का है। वो क्यों ऐसा अलामी उन्होंने दिया है? इलेक्शन अनाउंसमेंट शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, और क्या इस तरह के हरबे इलेक्शन में रुकावट बनने के अहल हो सकते हैं अब जब सारी चीजें नोश्ता दीवार हो चुकी? बहुत शुक्रिया अदनान साहब। राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार हो चुके, नविश्ता दीवार। जी बहुत शुक्रिया अदनान साहब। आज हैरानकुन तौर पर सुबह ही पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने कुछ ही लम्हों के वक्फे के साथ अपने एलामिये जारी कर दी, और दोनों ने इलेक्शन कमीशन और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात उठाते हुए उन्हें न सिर्फ घर जाने का मशवरा दे दिया, बल्कि ये कहा कि उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि एक तो वजह यह है कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल में भी इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी, ये आसमा जहांगीर ग्रुप है, और इसको सपोर्ट है आजम नज़ीर तारड़ साहब की और एहसन भून साहब की। और इन दोनों जो ग्रुप्स हैं और जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है,
انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیے اس میں یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن بھی ہو لیکن چیف الیکشن کمشنر گھر چلے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان کی اپنی بات میں تضاد تھا. ہم نے ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ اچانک خیال آپ کو کیسے آ گیا. ان کا یہ خیال ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان میں بہت نقائص ہیں. انہوں نے مثال دی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے جیلم، اس میں 13 لاکھ ووٹس کے اوپر 2 حلقے ہیں، جبکہ حافظ آباد میں 13 لاکھ کے نہیں، اوپر. لیکن اس کی تو ترتیب آ گئی. انہوں نے الیکشن کمیشن، انہوں نے تو کہا ہے میں تو جی سرگودے سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں کوئی ایسا واقعہ جی نہیں ایگزیکٹلی ہوا. جی ایک بات اس یہ کو ہے. مسترد دوسری کر بات دیا. یہ ہے جی کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، جی میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. میں آسمہ جہانگیر مرحومہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میری عمر 11 سال تھی. وہ میری بڑی بہن کی طرح ہیں اور میں آج تک ہر وقت اٹھتے بیٹھتے وہ میرے ذہن میں ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ان کے نام، میں آپ کو پورے یقین سے جتنا میں آسمہ بی بی کو جانتا ہوں کہ آپ جو نام لے رہے ہیں اگر وہ اس میں رخنہ انداز ہو رہے ہیں تو یقین مانے ان کی روح اس وقت قبر میں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی. کیونکہ الزام یہ بھی لگ رہا ہے میرے بھائی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے حافظ آباد میں زیادتی کی، 1 سیٹ نہیں بڑھائی اور وہاں سے غالباً ایک جنہیں اعتراض ہے احسن بھون صاحب، جو کہ مجھے اگین وہ بھی بہت عزیز ہیں بنیادی طور پر آسمہ بی بی کی وجہ سے. آئی وش کہ ایسا نہ ہوتا، اور غالباً اس کی بھی تردید وہ کر رہے ہیں. دوسرا، وزیر آباد میں ایک صوبائی اسمبلی کی نشست بڑھانے کی بات تھی جہاں پر ظاہر ہے کہ اعظم نذیر آرٹ صاحب کا نہیں آپ یہ سوری ایک سیکنڈ عامر بھائی میں اس کو کلیئر کروں. آپ یہ کہہ رہے ان سے ہیں کنفرم کروانے دیں. میں ان سے تب کنفرم کروں. آپ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کو آپ پہلے ذاتی فائدے کے. اچھا عامر وہاں ہوتے ہیں، کیا یہ باتیں اللہ کرے کہ یہ غلط ہوں لیکن یہ افواہیں ہیں یا کیا نہیں اس طرح کا فورم ذاتی طور پہ یوں؟ ارے میں یہ نہیں کہہ رہا کیا یہ باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں. عامر سعید میرے پیارے جی نصرت صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جو لوگ اس تمام تر پروسیس کا حصہ ہیں ان کا یہ خیال ہے، اور بہت سے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بہت شدید اعتراضات تھے ان دونوں شخصیات کو، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کو یہ کنوے بھی کیا تھا کہ آپ اس میں کچھ گنجائش بنائیں. بہرحال ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نصرت صاحب کہ بہت سے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سیزن آتا ہے الیکشن کا تو لٹیگیشن ہوتی ہے، حلقہ بندیاں چیلنج ہوتی ہیں، بہت سے ٹریبیونلز میں معاملات جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے وکلا ہائر ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے وکلا پھر چیلنج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف لے کر دیں گے، آپ کا یہ حلقہ بندیاں ہم ختم کروا دیں گے. اس میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 روز قبل جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک آبزرویشن دے دی کہ اب جو تمام حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ بھی اب الیکشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. جو حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں اب الیکشن 8 فروری کو ہوگا. عامر میرا خیال ہے کہ پلیز آپ کریکٹ کیجئے گا. دیکھیے نا، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ وہ پتھر پر لکیر والی بات دوبارہ جمعے کے دن کر کے چیف جسٹس صاحب تو ترکی چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ سے یہ بات آئی کہ بھائی 8 تاریخ سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. آج بھی غالباً عزت مآب اطہر من اللہ صاحب نے کوئی ایسے ریمارکس دیے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے تو دائیں بائیں کی گنجائش نہیں ہے. تبھی تو میں نوشتہ دیوار کہہ رہا ہوں نا سر. جی نصرت صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان بالخصوص اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ واضح ہدایات ہیں اور یہ کلیئرٹی ہے کہ انتخابات 8 فروری سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن عامر بھائی ساتھ ساتھ آپ دونوں پلیز جرنلسٹک ایتھک کا خیال رکھیے. یہ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یا اطہر من اللہ کی ذاتی خواہش نہیں ہے. آئین پاکستان اس بات کو کلیئر کرتا ہے سر. تو آپ یہ کہیں کہ وہ سپریم کورٹ آئین پاکستان کی پاسداری کرتا ہے، آئین پاکستان ہم ان کے کہنے تو آپ پہ کر رہے شخصیات کا ہیں. نام نہ لیجیے. ایک منٹ آپ دونوں ایک طرف مل جاتے ہیں اور اپنی بات شروع کر دیتے ہیں سر. یوں نہ کریں نا. سوری وی آر ٹاکنگ سم تھنگ You should clear this کہ وہ دو شخصیات نہیں ہیں، وہ آئین پاکستان ہے. جیسے جناب علامہ عدنان حیدر صاحب فرما رہے ہیں یہ آئین کا تقاضا ہے الیکشن ہو سر، اور آئین کے اندر ہی ہمارے معزز وکلاء کو جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 209 بھی پڑھ رکھا ہوگا. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ انہیں واقعی چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ پر اعتراض ہے اور ان کے پاس کافی ثبوت ہیں تو وہ اسی کونسل میں جائیں
जिसमें आप सीनियर जजेस को हटाने के लिए जाते हैं, तो उससे क्यों नहीं रुजू कर रहे बजाय इस्तीफे का मुतालबा करने के? इसका मतलब आइंदा इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं हम लोग। तो आमिर भाई तो इस पे कमेंट करें। जी देखिए अदनान साहब, आप थोड़ा बहुत आइन तो आप भी जानते हैं और आप कभी कभी वकील भी बन जाते होते कभी हैं। कभी नहीं, मैं भाई वकील हूँ, मेरा बकायदा जी वोट है मुल्तान में। जी 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 जी। और लेकिन जो वकला हैं उनका, वो भी आपको ऐसे ऐसी आइन की शिकों का हवाला देते हैं कि आपको शक होता है कि क्या जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात या 8 फरवरी को इंतखाबात कराना है, ये वाकई आइन में ऐसा है? क्योंकि वकला के पास बहुत से ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि फेयरनेस और दीगर तमाम जो कंडीशंस हैं वो पूरी होंगी तो शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन देखिए इस हवाले से आला अदालतें भी ये कह चुकी हैं कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है, हमने अब फरिश्ते तो कहीं से लेकर नहीं आने, यही जो दस्तयाब लोग हैं, यही इलेक्शन कमीशन है, हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जो नुसरत साहब ने बात की है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 209 आर्टिकल वाली, जिसमें आप कह रहे हैं कि उन्हें जाना पड़ेगा। भाई आपके पास सबूत है ना, और आप नामवर वकला हैं सारे, तो आप इलामिया आप जारी बार करें। एसोसिएशन है, ये है, आप बाकायदा यानी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से अप्रोच करें। ये जो नुसरत साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 209 209 मैं कह रहा हूं भाई, आपको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज है तो आप जुडिशियल काउंसिल में जाएं। यस सर, ये बाकायदा यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका है। जी नुसरत साहब अच्छा। देखें, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहरहाल आपको पता है कि हमारे यहाँ एक जमाने में जो वकला तंजीमें होती थी वो हमेशा रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बात करती थी, लेकिन गुज़श्ता हमने कई सालों से देखा है कि अब ये जो तंजीमें हैं ये अपनी वो असलियत खो चुकी हैं जो असल इनका मकसद था कि रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब ये बात करती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें जब शख्सियात तब्दील होती हैं वो अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं। अब उन ग्रुप्स में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है सियासी तौर के ऊपर। बहुत से ग्रुप्स हैं उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर हमें पेनिट्रेशन नजर आती है। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो एक जमात उनको सपोर्ट करती है, कुछ ग्रुप्स को दूसरी जमात सपोर्ट करती है। सियासी नहीं, मेरा ख्याल है पेनिट्रेशन और भी काफी है। आमिर भाई मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जिस पे मुझे हैरत है, अगेन आपसे मेरी दरख्वास्त है कि चूंकि आप इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे, फर्ज कीजिए बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुतालबे पर फर्ज किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर अभी इस्तीफा भी दे दें तो इलेक्शन जब भी नहीं रुकने। क्यों? कि जैसे ही वो रिजाइन करेंगे, सीनियर मोस्ट जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, नाम है उनका नसार दुरानी, जो सिंध से तशरीफ लाए, वो ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होगी। देयर इज नो नीड टू हैव अ न्यू अपॉइंटमेंट, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस नहीं रुकना ना, उसकी तारीख अनाउंस हो चुकी है। ओके, तो ये वैसे एक तो प्रोसेस भी, प्रोसीजर भी गलत एक है। तो बहरहाल राजा सुल्तान सिकंदर ने इस्तीफा नहीं देता, उन्होंने क्या भी दिया। जी सर, उन्होंने तो बयान भी जारी कर दिया। लेकिन साथ ही मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फर्ज करें। मैं एक जुमला देना चाहता हूं आपकी इसी बात पे। उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा है कि मजीद ये कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। जी वो तो है, लेकिन आमिर जैसे कह रहे हैं कि बहरहाल जो असल मसला ये हो रहा है कि ये जो हल्का बंदियों पे लिटिगेशन हो सकती थी और कोई सीजन लग सकता था, वो नहीं लगा, जैसे जैसे आजकल तुम्हारा लग रहा है जो हल्कों में जा रहे हो और मशहूर हो रहा है। मेरा ख्याल है आमिर आपने ये एक बड़ी वैलिड बात की है, लेकिन आपकी इनके ओहदेदारों से मजीद बातचीत हुई है? आर दे सीरियस टू परसू इट, या कि बस एक बात उन्होंने पॉइंट स्कोर करना था एंड दैट्स इट? नहीं नुसरत साहब, वो बस इस बयान की हद तक हैं और इससे ज्यादा उनको भी पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इसको ऑर्डर कर चुके हैं। सरदार तारिक मसूद सीनियर प्योने जज हैं जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी कि हमारे हुक्म के बाद कौन होता है जो इसको चैलेंज करता है। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। लिहाजा ऐसे हालात में वकला भी, आपको पता है नुसरत साहब, आप तो खैर बहुत बेहतर समझते हैं कि बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, बस बयानात भी होते हैं और बहुत ज्यादा वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करते और सिर्फ वो अपनी हाजिरी जरूर लगवा देते हैं कि हमने ये कह दिया था। चलो आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि मामला यहीं तक रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें बिल आखिर इलेक्शन कोई किसी ना किसी शेप में मिल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हम पूरा फोकस ये रखें, मजबूर करें कि यार ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ शफाफ मुमकिन है ये रहें, बजाय दूसरी कॉन्ट्रोवर्सीज में उलझने के। आई एम सॉरी हमने आपको अपनी बहस के लिए ज़बरदस्ती जो है ढूंढ के यहाँ लाया है। वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ये जो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार ने हासिल वसूल क्या किया,
ان اعلامیوں سے؟ حاصل فصول سر یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں تو کنٹروورشل بنائیں گی ظاہر ہے جو ہارے گا وہ کہے گا کہ اس میں الیکشن کی کہ اس میں شفافیت پہ بھی بات ہوئی ہے. اگر یہی چیف چیف الیکشن کمشنر رہے تو بھائی یہ نہ رہے تو نثار دورانی صاحب ایم کیو ایم والوں سے پوچھ لو وہ ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں, پھر کہیں گے اگر وہ رہے. وہ تو کہہ چکے ہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, برملا پریس کانفرنس میں کہہ چکے آئین ہیں. کے مطابق جب الیکشن پروسیس کا اعلان ہو چکا ہے تو اس موقع پر اگر چیف الیکشن کمشنر دباؤ میں آ کر استعفیٰ بھی دے دے تو 4 ممبر تو وہیں رہیں گے نا. ان میں جو سینئر موسٹ ہیں وہ دورانی نثار دورانی وہ آٹومیٹکلی وہ چیف الیکشن جس پہ ہم کمشنر کو ہو جائیں اعتراض گے. ہے. نمبر 2 پہ آتے ہیں سینیورٹی میں پھر بلوچستان والے. تو جب تک الیکشن کمیشن میں 5 میں سے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا ممبر, تو وہ فنکشنل ہے. وہ نان فنکشنل نہیں ہو سکتا. 8 فروری کو الیکشن ہو گئے قواعد و ضوابط کے تو میرے خیال میں یہ 4 سیٹ بنائی جا رہی ہے آفٹر الیکشن جو ان کے کام آفٹر آئے گی. الیکشن. اور وہ مجھے حیرت ہے کہ یہ یعنی تارڑ گروپ کی جانب سے آ رہی ہے, جو ادروائز سنا ہے کہ وہ جو 4تھی مرتبہ جن کو آپ وزیر اعظم ہاؤس بہت جلدی میں بنا رہے ہیں, پہنچ گئے سر, بہت ڈی قریب چوک ہیں. پہنچ چکے ہیں, وہ تھوڑے سفر رہ گئے. وہ تو بس وہ کیوں ان کو روک رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ خدشہ پڑ گیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ خیر ٹھہر بھائی تارڑ سر, آپ کو نجومی ہونا چاہیے تھا. یہ آپ نے ایسا ردیف قافیہ ملایا ہے, مطلب یہ اینگل تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. مطلب یہ جو سپریم کورٹ بار اور میں نے ساری زندگی گزار دی میاں, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آیا ہوا ہوں, میں سیاستی کو کور کرتا رہا ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تارڑ صاحب کو اپنے طور پر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یار 4تھی بار والا کام نہ ہو. کیا اعظم عزیز تارڑ صاحب میں اتنا سا ہے کہ وہ بغیر نواز شریف کا اعتماد میں یہ کام کر دیں؟ انہوں نے بہت سارے کام کیتے نا, کمال پہ کر دو. نواز شریف آن بورڈ تھے, وہ جن کا آپ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کو بھی خطرہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے 4تھی مرتبہ, تو پھر تو تم ایسے ہی بڑھ کے لگا رہے تھے. پھر وہ نہیں, آپ میں سمجھا کہ دوسرے کاموں کا حوالہ دے رہے ہیں. جی ٹی روڈ والے جو پنڈی سے ہو کے گزرتے ہیں, تو اس پہ وہ پر اعتماد میں لے کے اعظم عزیز تارڑ صاحب نے سارے کام کیے تھے. اچھا تو وہ تو دوسرے ہو گئے نا, وہ تو یہ نہیں, اس میں جاتی عمرہ تو کہیں نہیں آتا کہ وہ جی ٹی روڈ پہ ہے. جی ٹی روڈ پنڈی پہ نہیں, جی ٹی روڈ تو یہیں ہو جاتا, وہ تو قصور ہے نہیں جانا رہا ہے. نہیں, پنڈی والا جی ٹی روڈ پشاور تو لاہور جا رہے ہیں. ان علاقوں کو مجھے میں لوریا کروں, میں کونج بیگ ادھر ہی کھانا. اچھا اللہ آپ کو نہ ہی لے جائے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب دیکھیں, کل آپ نے ہمیں تانا دیا کہ ہم نکمے ہیں, ہم کام چور ہیں, ہم شیراں باغ سے واپس آ گئے. اتنا بڑا شہر ہے گجرانوالا. آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ شہر بڑا ہے, پر آپ غلط کہہ رہے تھے کہ ہم نکمے ہیں. تو دیکھیے شہر کا باقی حصہ جس کو اندرون. بڑی مہربانی, شکریہ سنائیں جی. میں شرمندہ ہوں جی آپ کو غلط کرنا نہیں چاہتے, لیکن بتائیں جی, دکھائیں جی کیا تھا باقی گجرانوالا میں ووٹرز کا ماحول. ووٹ نواز شریف کا. سر اتنی محبت نواز شریف سے, الحمدللہ. ووٹ کس کو دیں گے سر؟ ووٹ جی نواز شریف کو. نواز شریف سے پیار ہے یا شروع سے بس کوئی اور آپشن ہی استعمال نہیں کیا آپ نے؟ نہیں نواز شریف ٹھیک ہے, بندہ اچھا بندہ ہے. خرم دستگیر سب جیت سکتے ہیں یہاں سے؟ ہاں جی ضرور, وہی جیتتے نے ہر باری, خرم نہیں جیتنا. کہتے ہیں تحریک انصاف کا بہت ووٹ بینک ود گیا. نہیں میرا خیال کوئی بھی نہیں, ابھی تک کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے. ملک کے مسئلے حل کر سکتے ہیں نواز شریف؟ بالکل, کیوں نہیں, ضرور. ووٹ نواز شریف کو دیں گے اگر جو وہ لندن نہ بھاگے تو. اب یہ گارنٹی کون دے گا کہ نواز شریف لندن نہیں بھاگیں گے؟ نواز شریف خود دے گا, ہم نے تھوڑی دینی ہے. وہ پہلے بھی 2 دفعہ چلے گئے, تو اب کیسے وہ لندن بھاگے گا پھر ووٹ نہیں دیں گے. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ وہ لندن نہیں بھاگیں گے؟ آج ادھر کروائے گا. بڑی تیزی جا رہے ہو. میں جی جا رہا جی اڈے تے مزدوری اج لبھی نہیں, تے میں کہا چلو ہن سوم تک بندوبست کریے. اج نہیں لبھی مزدوری؟ نہیں جی اج کتوں لبھی ہے. کنے بچے نے تھوڑے؟ میرے ماشاءاللہ 6 بچے جی. کنا کما لے جو مہینے کا؟ مہینے کا بھی کدی 2 دن لگتے نے, 7 دن لگتے نے. مزدوری کری جی مستریاں دی. تو پھر کیویں گزارا چلتا ہے؟ بس مالک ہی ہے, لنگر خانے کھولے نے انہیں, اتوں لب جاتا ہے. نواز شریف کہتے ہیں میں غریب کی غربت مکاؤں گا, آپ کے مسئلے مکاؤں گا. اور میری یہ جانے اگے بھی رہ کے گیا, انہیں حکومت کی ہے. جدو پہلا بجٹ دیتا چھڑے انہیں غریب آدمی سمجھ, جدو پہلا بجٹ دیتا انہیں کیڑی غریب تے کیڑا امیر. یہ آندے سن جی ساڈی لندن چھڈ کے پاکستان بھی کوئی پراپرٹی نہیں, 16 ملاں انڈیا چ نکلن ڈیاں نے. کس کو دیں گے ووٹ؟ میں پیپلز پارٹی کو. کون سی پارٹی ہے جو یہاں سے الیکشن جیت سکتے؟ صحیح بات کریے گا. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ منحصر ہے, خرم دستگیر, نون لیگ, ان کے متبادل فی الحال کوئی نہیں.
फिलहाल पीटीआई के पास कोई नहीं। अगर पीटीआई के पास अच्छा कैंडिडेट हुआ तो कोई पीटीआई भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास ना पीटीआई के पास। आप किसको वोट देंगे भाई, पीटीआई वाले? जी नहीं भाई, मैं भी उठाया जाऊंगा, पार्टी का नाम लूंगा तो। भाई इन्होंने नहीं वो यार वोट तो दे सकते हो। नहीं वोट नहीं, खुफिया ही रहने दें आप। वोट खुफिया ही देना। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? नवाज शरीफ को उसके नजरिए की वजह से हालिया जितने भी दौर गुजरे हैं ना, नवाज शरीफ का नजरिया क्या है मेरे दोस्त, मुझे भी समझाओ। ये है कि जब भी उसकी हुकूमत आई है ना, आप जिस मर्जी दौर की बात कर लें, मतलब कि 2 कदम आगे गया। सर नवाज शरीफ का नजरिया बताएं क्या है? नजरिया यही है कि गरीब की खिदमत करनी है, ठीक वो है। एक गरीब मुझे मिला है, वो बेचारे ने बच्चे की मोटरसाइकिल बेच के अपना बिल उतारा। वो तो अपना अपना ओपिनियन है ना, ठीक है। ये 4 साल में महंगाई, मैं अपनी देता, ये कहते हैं जी गरीब सही गल तुम दसा ना, कहते हैं कि नवाज शरीफ ने आया वो आया है, शहबाज शरीफ है उन्हें की किया है, कसम रब दी 4 दिन हो गए ने वेले हैं, कम ही नहीं लभदा पिया, पूरे बाजार ही फिर चुके हैं। कोई भी हुकूमत नहीं सी ना पड़ता। ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੰਡੀ ਬਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। महंगाई हुई ना, 4 साल में महंगाई हुई। नवाज शरीफ को क्यों अच्छा लगता है ਅਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। जुल्फकार अली भुट्टो, ਹਾਂ पीपल्स पार्टी। ਹਾਂ ਜੀ, पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे वोट? ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। बड़ा अरसा हो गया, तो दोबारा एक दफा ट्राई की जाए। क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी मसले हल कर सकती है? ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। खुरम दस्तगीर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग वाले, ਹਾਂ ਜੀ, जीत सकते हैं वो इलेक्शन? ਹਾਂ जी सकते। तो आप तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मैं एक आऊंगा उधर 10 देंगे। वोट किसको देंगे? ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ को। वोट इंशाल्लाह पीटीआई, पीटीआई को। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर गुजरांवाला की ओ सर गुजरांवाला सारा कहता है नून लीग ही हैं। पीटीआई। वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने काम किया है आपके ख्याल में गुजरांवाला में खास तौर पर? गुजरांवाले में तो काम उन्होंने किया ही, क्या किया इधर? वो कहते हैं हमने शऊर दिया, तहरीक इंसाफ वाले तो बड़ा जोरों शोर से कहते हैं। खाली शौर से पेट तो नहीं भरता, कि भर जाता है। महंगाई का जिम्मेदार क्या तहरीक इंसाफ वाले हैं? ये सब ही है। खुरम दस्तगीर साहब बहुत वजारतों में रहे हैं, क्या किया उन्होंने गुजरांवाला शहर के लिए? उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आवाम को नजर ना आए तो ये अलग बात है। महंगाई बढ़ी है, वो सारा कहते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार ये तो शेर बब्बर आएगा तो सारे मसले हल कर देगा। कोई शेर बब्बर कौन है? नवाज शरीफ है, शेर बब्बर। शेर बब्बर है। वोट किसको देंगे आप? वोट मियां नवाज शरीफ का। तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को क्यों वोट देना चाहिए? इंसाफ के अलावा सब चोर हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब मैं वजीर आजम था तो मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बना दी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। ये हमारे मुल्क का क्या हाल है? वो सर वो कहते हैं रोटी 2 रुपए की थी मेरे दौर में। नहीं, रोटी तो वक्त के गुजरने के साथ तो हर चीज मंगाई हुई है ना। वोट किसको देंगे? किसी ने भी नहीं। यार वोट जो अल्लाह खैर करे, ये मुल्क जो सही करने वाला है उसको देगा यार। तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? जी जी बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर गुजरांवाला सिटी के। यार खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि मैं बिला मुकाबला जीत। नहीं नहीं नहीं, वो गया ये दौर उनके। वोट किसको देंगे आप सर? वोट सारे शेर दा पक्की गल है। पक्का इंशाल्लाह। खुरम दस्तगीर साहब ने केड़ा ऐसा काम किया है कि तुसी उन्होंने ही वोट पाओ? सर रावलपिंडी वाला, रावलपिंडी बाईपास वाला ब्रिज देख लो आप। इसके अलावा पूरा शहर इससे पहले ना मिट्टी, तूफान, गर्दो गुबार। अवाम के मसले हैं गुर्बत, नवाज शरीफ क्या गुर्बत खत्म कर सकते हैं? नवाज शरीफ दौर में गुर्बत खत्म हुई है, आसान जिंदगी थी। ये आगे कहते हैं कि अब वोट बैंक तहरीक इंसाफ का बढ़ गया है। वो उनका है, वो शोभा कमर्शियल मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला, सिर्फ उसी में बढ़ा है। गुजरांवाला के लोग तो नून लीग को वोट दे रहे हैं। लेकिन मैं पीटीआई को ही दूंगा। पीटीआई जीत सकती है गुजरांवाला से? जी इंशाल्लाह। क्या किया पीटीआई ने ऐसा कि आप पीटीआई को वोट देना चाहते बहुत ऐसा कुछ किया जो इसकी वजह से मैं हैं? एक तो दूंगा। बात है, मुझे भी गिनवाए ना सर। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सेहत के शोबे में किए हैं, तलीम के शोबे में किए हैं। तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा किया है। इस तहरीक इंसाफ जीत सकती जी इंशाल्लाह। है? तहरीक इंसाफ को जी आप कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? इधर ही शहर का रहने वाला हूँ। वो तो हमने तो सुना है गुजरांवाला में सारे लोग नून लीग को वोट दे रहे हैं। खुरम दस्तगीर साहब बड़े उम्मीदवार हैं। वो मेरी शादी पे आए थे लेकिन वोट नहीं देना मैंने उनको। सर आपकी शादी पे आए थे, वोट तो बनता है उनका। नहीं बनता ना। उसने सड़कें नहीं बनवाई, हेल्थ कार्ड दिया, जो बेघर थे उनको घर दिया रहने के लिए, खाने ना खाने वालों को खाना दिया,
यही चीजें होती हैं। शौकत हारम 3 बनाए हैं, ठीक कह रहे हैं। नेमल यूनिवर्सिटी बनाई है, क्या यार ठीक कह रहे हैं आप सर, ठीक कह रहे हैं आप। वो नेमल यूनिवर्सिटी जो बनी है, मैं बताऊं आपको, उसको चांसलर बनाया था। आपने कहा कितनी पे लेनी है, उसने कहा मैंने पे नहीं लेनी, मेरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, उसका डिग्री देनी है आपने। ये बात के लिए होता है। ठीक है हाँ जी। अब मेरा सवाल ले लेना सर। इस वक्त यहाँ बाजार में गुजरने वाला हर शख्स गुर्बत से तंग है, बिल्कुल तंग हम है। सब तंग मैं हैं। खुद में सेलमैन हूँ यहाँ पे। तो सर यही तो है ना। 50,000 रुपए मेरा बिल आया है, 50,000 रुपए मेरी सैलरी नहीं नवाज शरीफ का क्या कसूर इसमें? है। नवाज शरीफ का क्या कसूर? शाबाश, मुझे लगता है आप उनके बंदे लगते हैं भाई मेरे भाई। आप मुझे उठ की बात कर रहे हैं आप हकीकत बात करें मेरे भाई। सर मुझे ये जो समझा, बच्चे लोगों के लिए सोचने वाला मैं है, जो ये- वाम के लिए सोचता है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि इन सब की गुर्बत खत्म कर देंगे। 40 साल से खत्म तो नहीं हुई। वो कहते हैं आप कर दूंगा मैं। माशाल्लाह, मेरा मतलब है नया फ्लैट ले लेंगे इंग्लैंड में मेरे भाई, या कनाडा में ले लेंगे, गुर्बत ही हमारी खत्म होगी। गुजरांवाला तो मैं सुनता आ रहा हूँ, लोग तो सारे नून लीग और शेर के नारे मार रहे हैं। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह नहीं होगा। खुरम दस्तगीर सब हार जाएंगे। नहीं वो नहीं सही है, इमरान खान ठीक है। खुरम दस्तगीर सब क्यों सही नहीं है? पूरम दस्तगीर क्योंकि नून लीग क्या वोट किसको देंगे? वोट असी नवाज शरीफ देंगे जनाब। नवाज शरीफ। पक्की गल है जी। नवाज शरीफ मुल्क की गुर्बत मुका सकते हैं। सर अगे भी नहीं मुकाई सी, हुण भी मुकाएगा। 16 महीने उनकी हुकूमत रही। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ तो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ 42 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ 42 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ भी देख रहे हैं, लेकिन ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਨੇ ਹੱਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। उसके बाद 16 महीने को भी तो देखें। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ ही हुआ ना। ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। क्या क्या नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं इस ਉਹ मुल्क ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। में? 2-4 गल्ला मैंने भी दसो ना। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2008 9 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਛੱਡੀ। नवाज शरीफ नून लीग इलेक्शन जीत ਮੇਰੀ सकती ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 2017 ਦੇ ਕਰਾ ਮੈਂ 18 ਚਾਂਦ ਗਾੜੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ नो नवाज शरीफ साहब बन जाएंगे वजीर आजम। इंशाल्लाह क्या किया उन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए? उन्होंने तो किया है सब कुछ। 16 महीने उनकी हुकूमत रही, सब कुछ महंगा हो गया। 16 महीने नहीं, हम लोग 2018 से जानते हैं जब उनकी वे चले साल गायब हो गए सन, मतलब बीच वाले जो 16 महीने हैं वो गायब नहीं हो सकते। नहीं गायब नहीं हो सकते, लेकिन हम उसको उस जरिए से देख रहे हैं जो 2018 में थी 65 में। बिल्कुल देखे हैं ना, लेकिन जब लोग वोट देंगे तो 16 महीनों में जो तहरीक इंसाफ पेट्रोल छोड़ गई 150 रुपए पे, वो हो गया 300 रुपए। आटा 60 रुपए से 160 हो गया। इंशाल्लाह वापस आएगा, सब कुछ वापस आएगा। जनाब वोट तो साडा चाहिए तो किसी ने भी ना देना। वो सर को पढ़ी लिखी गाल करो ताकि गुर्बत खत्म होवे, महंगाई खत्म होवे, वोट देंगे तो होएगा। इमरान खान को जनाब वोट देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरांवाला गुजरांवाला में रहते हुए वोट तहरीक इंसाफ का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी यहाँ से। कुछ भी नहीं करेगी। अगर करना तो इलेक्शन करवा लेना, फिर इलेक्शन तो हो रहे हैं 8 फरवरी को। वो जब होंगे इंशाल्लाह इधर ही मिलेंगे आपको। तहरीक इंसाफ क्या वाकई गुजरांवाला से जीत सकती है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगी। लोग क्यों देंगे तहरीक इंसाफ को? उन्होंने पहली तो बात यह है ना कि उन्होंने जो भी पाकिस्तान के लिए गुजरांवाला के लिए सोचा है वो सही है। ना इधर यूनिवर्सिटी है, ना इधर मसलन के कोई हॉस्पिटल है, ना इधर कोई एयरपोर्ट है। हर हमारे से तो सियालकोट वाले अच्छे हैं ना, जिधर के एयरपोर्ट भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मोटरवे भी है। आप क्योंकि हम साहब ही हैं खुरम दस्तगीर साहब के। खुरम दस्तगीर साहब हुए नून लीग के। तहरीक इंसाफ का जिसको आपने वोट देना वो कौन है? वो कोई भी आ जाए इंशाल्लाह हम उसको वोट देंगे। वो इनको वोट टिकट दे दें फिर। इनको छोड़े, इनको भी दे दें। पीटीआई जिंदाबाद। क्यों पीटीआई ने ऐसा क्या किया कि उसको वोट देंगे? और यार करने से कुछ देना, तो इन्होंने क्या किया है? ये तो सर मोटरवे बनाई है। भाई मोटरवे बनाई है, वो जो सी बनाई है हमारे लिए, हमारे पैसों की बनाई है। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, अच्छा भाई, बात यह है, सबसे पहले तो बात यह है कि जाते आप हो मैदान में, वो गालियां और आज सुबह से जो है माशाल्लाह वो जो तहरीक इंसाफ की नकाली में हाँ उनकी नकल में जी, वो उनका जो मान लो ना मेरी गल, पीटीआई का अपना सोशल मीडिया है, नून लीग का अपना सोशल कह रहा मीडिया हूँ है। कि उनकी नकाली में, मैं लफ्ज़ से नकाली उन्हीं की ज़बान कट पेस्ट वाली इस्तेमाल करते हैं, और उनमें जो मुतहर्रिक आदमी हैं, जैसे सबसे पहले ये बात मैंने
2009 में बताई थी कि जहांगीर तरीन साहब ने कहाँ कारखाना सेट किया है लाहौर में कि तहरीक इंसाफ का। इसी तरह मुझे ये भी पता है कि ये कारखाना कहाँ सेट हुआ हुआ है, ठीक है, और इसका फाइनेंसर कौन है और इसके पीछे जहन साज कौन है। ये तहरीक इंसाफ के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और वो सारी मेरे अरे बुढ़ा सनकी हो गया, पागल हो गया, उसके अलावा इतनी गालियां खाती है ना, और थोड़ी नहीं मेरे वास्ते भी कहा नहीं देखो, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तो उसके नीचे थैंक यू। वैसे आपको पता है आप जनती हैं। मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ थैंक यू शहबाज शरीफ, और मैं दोबारा फॉरवार्न कर रहा हूँ कैमरे पे बैठ के, मियाँ साहब की 2 हुकूमतें भुगती हुई हैं 1990 में, दोनों। तीसरी भी तो भुगत ली, तीसरी भी भुगत ली थी, और अल्लाह करे, मेरे दिल से दुआ है चौथी मर्तबा भी आ जाए। इस तरह नहीं होगा, यू कांट बुली मी। वैसे मुझे लगता है मुझे जर्नलिज्म करने से कोई नहीं रोक सकता। अब कल तुम गए थे, गरीब तरीन लोगों में शेरावाला बाग है, वहां पे ज्यादातर जिसके यहाँ रोटी नहीं है वो तो गुस्से से उबलेगा ना। आज तुम गए हो मार्केट में, और तुम्हारे सामने एक बंदे ने जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी थी, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम तो ताजिर लोग हो। हाँ, वो दूसरा लड़का। जब तुम दुकानदार के मालिक से बात कर रहे हो, वो मुस्लिम लीग नून की तारीफों के दरिया बहा रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब को। और अब देखो, और गरीब जो है उसकी उम्मीद है तहरीक इंसाफ, नहीं उसको गुस्सा ज्यादा है। चलो, जो देखो भी है। जिसकी दिहाड़ी नहीं, एक और की जिसकी जो बेचारा कह रहा था कि आज मैं खाली हाथ घर जा रहा हूं, उसको क्या याद है? उसने नवाज शरीफ नहीं, उसने कहा शहबाज शरीफ ने जरा पहला बजट देता है अप्रैल 2022, इसी बायस कत्ले आशकान से मना करते थे। अब ये इनके मुंह पे आ रहा है, लेकिन अब इनके काम क्या आ रहा है? आज से कागजात नामजदगी शुरू है, 22 तारीख आखिरी दिन है कागजात नामजदगी का। इस्लामाबाद के कितने हल्के हैं बरादर? 4 3 इनमें बताओ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन कौन? चलो ओ मैं जो 11 फेरा उन्हें भी नहीं लाभ नहीं ऐसे जितने रहना पे आप उधर भी पूछते हो ना, कहते नहीं एन दे दो। ओ भाई आज कागजात नामजदगी कौन जमा करवाने जा रहा है? क्यों छुपे बैठे हो? तो क्या करें यार, जाएं जाके कागजात नामजदगी लेने आए। ये पाकिस्तान की तारीख तुमने में पहली दफा हो रहा है कि इतनी सख्तियां हैं कि वो नहीं है? पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इलेक्शन के टाइम में तो पहली दफा हो रहा है ना सर। क्या हुआ? क्या बाहर नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करा? जनाब अली सर, मार्च 1977 में भी इलेक्शन हुए थे इस मुल्क में। एक साहब होते थे जान मोहम्मद अब्बासी, वो अगवा हो गए थे। इसी वजह से 7 मार्च का जो इलेक्शन है, और भुट्टो साहब उसके नतीजे में डिक्लेयर कर दिए गए थे अनअपोज्ड। जब वजीर आजम हो गए तो चारों चीफ मिनिस्टर्स ने भी फैसला किया कि 80 भी अनअपोज होना है। तो दिन उस दिन से चला था ना धांधली की, वरना मैं आज भी मैं मुसिर हूँ कि 77 का इलेक्शन भुट्टो साहब जीते थे, लेकिन उस दिन मिठा ज्यादा पै गया 7 मार्च में। समझ गए बात को? तो ये मत कहो कि ये पहली मर्तबा हुआ है, लेकिन लोग लड़े, रातों रात बनी थी पीएन ने, रातों रात लोगों ने कहा जाते ना यार, इन्होंने कितने कम से कम 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख वोट लेना है ना, तो 10,000 बंदा तैरना रिटर्निंग अफसर से दफ्तर नहीं जा सकता, तो गाड़ी में फिर वर्चुअली लाया वोट क्यों? नहीं तुम क्यों ना जाए? तुम अपना आईनी हक, आप ये कह रहे हैं कि अदनान हैदर पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, तुम्हारा ये आईनी हक है। ओ भाई, अदनान हैदर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से उठाया जाएगा। आप अदनान हैदर की सियासत खत्म करना चाहते हैं? वो पीटीआई ने सियासत करनी तो है ना यार, ये स्ट्रेटेजी है उनकी। फिर ऐसे करो, घर बैठे रहो जब तक फिर होता है। फिर अच्छा, फिर इसी तरह यही बात थी तो जियाउल हक का तो नेकेड मार्शल था। डिड पीपल्स पार्टी की बात नो, अगर रियाजुल इस्लाम यहां से लड़ा था, मेयर हुआ था या नहीं हुआ था अवाम दोस्त उम्मीदवार बन के? क्या बात कर रहे हो? अगर टैक्टिक्स में आते हो अल्लाह फड़े जाओगे, ओ भाई तो फिर कहते हैं कि यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं, अंग्रेजी में मुहावरा है, यू कांट टेक द हीट लीव द किचन। तुम मुझे बताओ, उमर अयूब खान साहब मुझे बहुत प्यारे हैं, इस जमात के सेक्रेटरी जनरल है, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं। उनके वालिद ग्रामी का हाल ही में इंतकाल हुआ है, गौहर अयूब खान साहब। गौहर अयूब खान साहब ने जो है जेल से इलेक्शन लड़ा था जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत में, और जीते थे हैंड्स डाउन। अब उमर अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते, गौहर अयूब के फर्जंद, अली कुली खान के उनके भांजे, हाँ
सैफुल्लाह फैमिली के दामाद, पर उसमें इतना हौसला वो अगर बाहर नहीं आ सकते, वो 10,000 बंदा लेके रिटर्निंग अफसर के कोल है। समझ नहीं रहे, उठा लिए जाएंगे। यार तो फिर सियासत मत करो ना, यहाँ पकड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। जब डिफेंस की पॉलिटिक्स ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है। तो बात कार बैठे रहो फिर। देन इलेक्शन इज वन वे। सियासत में स्ट्रेटेजी होती है नुसरत साहब। स्ट्रेटजी तो यही है ना कि किसी तरह कागजात नामजदगी तो जमा कराओ। कल 20, परसों 21, 22, 3 अस्सलामुअलैकुम। 3 दिन। मुझे आज बता दो कल कौन कागजात नामजद करेगा? तहरीक इंसाफ वालों। और आखिरी दिन एतराज भी को लग सकता है कि फलानी FIR है तोड़ी। ये छोड़े, उसके बाद जब मुकाबले पे है ही नहीं कोई, अब जब ये तुम पूछ रहे हो तो ये लोग जिन्होंने जो कह रहे हैं ना, वो यार खड़ा कर दो जी, दे देंगे, कहेंगे जी उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं। उसके मुकाबले में बहरहाल अभी तुमने देखा ना कि दस्तगीर खान साहब के हामी भी तो है ना, हाँ हैं। वो निकलेंगे हॉर्न में जाते हुए, 30-40%। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। आप ये 6-7 हलकों को देखने के बाद कैंडिडेट नहीं मिल रहे हमें, आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इन 4 दिनों में मुतहर्रिक होना पड़ेगा हर सूरत, और सोशल मीडिया पर नहीं। ये जो कहते हैं ना कि हर हलके से, तो भाई आज कहें कि मैं कल इस्लामाबाद जिला कचहरी फलां बंदे के रूबरू रिटर्निंग अफसर के अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाना चाह रहा हूँ, मेरे अजीज हमवतनों आओ हमारे साथ बढ़ो। नहीं, वर्चुअल अगर जलसा आप- तुमने बहुत बड़ा किया, क्रैश कर गया था इंटरनेट, इतना बड़ा जलसा था। तो फिर बहुत बड़ी पब्लिक है उनके साथ, जिसको आप डिनाई करते बाबूजी, हैं। मैं नहीं ना, मैं यार अब ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ वाले जो हैं गालियां दे दे के फारिग नहीं होते, दूसरी तरफ आप कहते हैं डिनाई अब मैं करो। क्या करूं? भाई साहब, इलेक्शन वर्चुअल नहीं होने, इलेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं होने। इलेक्शन के लिए पहले कागजात नामजदगी देने हैं, फिर जाके वोट भी डालना है। उसके बाद बोलो जी आप जेल चले जाओ, कागजात नामजदगी मंजूर करवाओ, तो कवरिंग कैंडिडेट होएगा। यार क्या कर रहे हो? 22 तारीख तक अब आप घरों में बैठे रहे, फिर कहीं इलेक्शन एक तरफ है, उसमें हो सकता है अंडरग्राउंड बहुत काम करते क्या हैं। हो सकता है बैकडोर की काम वो चल तुम रहा हो मुझे और आखिरी बताओ ना, दिन जो अंडरग्राउंड किया होगा, तो अभी तक इतने तुम नालायक रिपोर्टर हो कि तुम्हें यही नहीं पता इन 3 हलकों में से कौन मुतफिका उम्मीदवार हो सकते हैं। वो तो नहीं मिल सका, है नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी हो। मेरा ख्याल है कि एक तो है ना शोएब शाहीन साहब औसत उम्र वाली सीट से लड़ना चाह रहे हैं, हाँ। एक शायद वो अली बुखारी साहब एक और सीट से, ये फुलकराम वगैरह जो है, जो इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं वो कहते हैं हमें टिकट दे दो। फिर भी तीसरा बंदा नहीं है। इस तरह तो नहीं, फर्ज करो अब उनमें से आपस में अमित जी को सुनमुखी सो हो जाए। अब तक तहरीक इंसाफ को अपने कैंडिडेट दे देने चाहिए थे। हर सूरत, वक्त निकलता जा रहा है तहरीक इंसाफ वरना फिर ये कि फेसबुक पे ही हो जाए। ये फेसबुक, ये यूट्यूब और ये ट्विटर ऑफ कोर्स ये एक बहुत जरूरी पार्ट बन चुके हैं। इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, इट्स नॉट It's not अल्टरनेटिव टू रियल हाँ, वर्ल्ड। it's not a real एक्सक्यूज world, मी it's सर। not real। प्लीज इसको माने और ये व्यूज देखना बंद कर दें कि इतने व्यूज आ गए हैं और ज्यादा भी टाइम हो गया। और देखते से ही इससे पहले सोना पे लग हाँ, गई। इससे पहले के वक्त आपके पास भी ये वो खत्म है। हो जाए, जैसे नुसरत साहब और मेरे पास आज वक्त खत्म हो गया, तो हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। अगर आपके पास तहरीक इंसाफ वाला वक्त खत्म हुआ तो आपको पाकिस्तान की सियासत से इस इलेक्शन में लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह करे ऐसा ना हो।